excited that I'm finally shooting a kitchen studio tour because मेरा बहुत मन था काफ़ी टाइम से. It's such a big part of Bake with Shivesh and what I do on an everyday basis. For the longest time मैं अपनी सारी pictures and videos एक छोटे से store room, small studio में ले रहा था and in 2019 I finally made the decision of setting up a bigger kitchen studio from scratch and ये मेरे घर पे ही है. So the best part is that to get to work I only need to climb one flight of stairs, which is fantastic, and I'm super excited to be taking you guys there to show you all the things that I've curated with a lot of love. Let's go. Welcome to my kitchen. So let me start with the part जो आप लोगों ने mostly मेरे videos में देखा होगा, but there are still a lot of elements that I wanted to talk about. So even before I started conceptualizing my kitchen, I knew कि मुझे open shelves चाहिए instead of cabinets, because जो ये सारी crockery और cake stand है जो मैंने over the years collect करे हैं, I wanted कि वो on display और cabinets में बंद करके ना रहें. And initially इस kitchen में there were 3 open shelves, तो 1, 2 and एक और था. But last year मैंने kitchen को redesign करके थोड़ा बहुत वो शेल्फ हटवा दिया एंड उसकी जगह आई एडेड अ लॉट ऑफ न्यू एलिमेंट्स. एक मैंने ये छोटा सा शेल्फ ऐड किया विच आई थिंक लुक्स वेरी क्यूट, और इस पर हम लोग जो हमारे इंग्रेडिएंट्स के जार्स हैं सेम आई हैव एडेड दोज. I also got this hook situation from Home Center just so that I'm able to put more elements on display like these copper measuring cups. ये दो ceramic mugs मेरे favorite है. I got these from Clayman. And there's one red fabric which again is there in all the videos. And नीचे as you'll see there are a lot of jars. ये cupcakes के बारे में सब मुझसे पूछते हैं कि cupcakes real है कि नहीं, because हर वीडियो में होते हैं. So these cupcakes are actually real. हम इसे freezer में डाल के रखते हैं ताकि इनको कुछ हो ना. So which is why you must have seen them in a lot of videos. ऊपर of course there's a full row of cake stands जो कि अब पूरा भर चुका है. नीचे second shelf में बहुत सारे और different elements हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि मुझे याद है मैं ट्रैवल कर रहा था जब इस किचन के इस मेन वॉल की टाइल्स पे कोनी थी एंड मम्मी पापा गए थे शॉप करने के लिए और उन्होंने मुझे पिक्चर व्हाट्सएप किया था. तो वो टाइल्स व्हाट्सएप पे तो बहुत अच्छी लग रही थी, बट जब वो एक्चुअली लग के आई ना तो मुझे डे 1 से कभी भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी. एंड इवन इन द वीडियोज़ उनमें ना एक ऐसे येलो सा शेड था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. तो फाइनली अप्रैल में ही मैंने बिकॉज मुझे पूरा ऐसे इलेबोरेट टाइल्स तोड़वा के फिर से करना नहीं था. सो आई गॉट दीज वॉल स्टिकर्स ऑन अमेजॉन एंड आई वाज शुक कि एक्चुअली इतनी ज़्यादा रियल लगती है. मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. ये कम्प्लीटली वाइट है. आई लव द टेक्सचर ऑन इट एंड ये वाली टाइल्स का साइज़ काफ़ी छोटा है फ्रॉम जो टाइल्स पहले थी. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस नाउ एंड इवेंचुअली आई वॉन्ट कि मैं ये स्टिकर्स हटा के ऐसी रियल टाइल्स लगवा दूँ बिकॉज दैट विल ऑब्वियसली लुक इवन बेटर. Another element in the kitchen जो I think सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है is this wire mesh hanger. ये मैंने Elementary Home से ऑर्डर किया था and I'm so glad because this has become like one of the showstopper pieces of the kitchen. And इसमें हमेशा oranges होते हैं and हमेशा सब मुझसे पूछते हैं, तो yes ये oranges भी real हैं and इनको हम हर 2 to 3 days में change कर लेते हैं. One of the oldest things in this kitchen has to be my KitchenAid stand mixer and it adds a very nice pop of color. You would also notice that मेरे पास बहुत सारे different textures, shapes, sizes के wooden boards है because I absolutely love them. And ये मैंने over the years from all different places collect करे हैं. This is also a new addition in the kitchen. This vertical shelf ये actually मेरे पुराने studio store situation में था. ये वहाँ से निकलवा कर I got it put here because again इतने सारे कलेक्शन प्रॉप्स का बढ़े जा रहा था एंड आई नीडेड मोर स्पेस एंड आई थिंक दिस लुक्स रियली कूल बिकॉज जो ये हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स है उसके साथ दिस लुक्स रियली नाइस टू हैव अ वर्टिकल स्ट्रक्चर. पहले इस कॉर्नर में फ्रिज होता था बट नाउ द फ्रिज हैज गॉन इनटू द स्टोर रूम बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइट ब्लॉक होती थी एंड इट वाजंट दैट एस्थेटिक लुकिंग. सो जस्ट साथ वाले रूम में द फ्रिज इज देयर नाउ एंड वी हैव गॉटन लाइक अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस हियर. सो जो किचन आइलैंड है जहाँ पर ऑल द वर्क हैपन्स, इसका काउंटर अगेन आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे मार्बल चाहिए एंड तब मुझे सबने बोला था दैट ये मार्बल इवेंचुअली येलो हो जाएगा और तब मैंने किसी की नहीं सुनी बट अब ये येलो हो गया है. बट आई एम ग्लैड दैट इसको मैंने काफ़ी साल इन्जॉय किया है. बट नाउ आई गॉट दिस MDF का काउंटर ऑल्सो मेड जो इस पर परफेक्टली फिट हो जाता है. सो वी हैव दैट एज अनदर ऑप्शन. आइलैंड के नीचे देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरेज, काफ़ी सारे ड्रॉर्स है जिसमें पूरा सामान भरा हुआ है एंड इवन पीछे the full row has drawers, so luckily I was able to incorporate a lot of storage into my kitchen.
So for the storage drawers, I got a bluish grey color because I think ये बहुत ज़्यादा अच्छे से जाता है with the aesthetic of the kitchen, and I personally really like this shade. For the knobs, I got the same color scheme but all different designs, but I think it still all ties together really well. इसको मैंने खुद पेंट किया था again in the same color scheme of blue, grey, white, and I was very happy with how it turned out. And kitchen island के इस side पे एक electricity point है जहाँ से I can connect all my mixers and gadgets जो भी मैं use कर रहा हूँ. So I think this was a great utility point. So ये वाली wall is one of the favorite parts of the kitchen because of this big window and the amount of light that comes in. यहाँ पर I got this wooden panel thing which I think was one of the best decisions. बट मैंने सोचा था यहाँ पर बैठ के मैं बाहर देखकर इसे कॉफ़ी पीऊँगा, विच हैज़ नेवर हैपेंड. इस किचन में सिर्फ काम होता है. I've never really gotten to just chill, but now यहाँ पर we have kept the books, fruit baskets, कुछ भी जो होता है वो यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाता है. And I think it just adds a really nice element into the entire kitchen. I also got these bar stools made for the kitchen, जिसके ऊपर का सीट is wood and नीचे there is metal. ये डिज़ाइन मेरे दिमाग में बहुत अच्छा लग रहा था, but I think जब वो एग्जीक्यूशन में जो उसके legs हैं वो बहुत ज़्यादा broad हो गए, so these end up occupying too much space. So मेरा मन है to change these, but I think they look very good. Let me know in the comments if you think they look very good. I was very sure that I wanted very big windows in the kitchen because अब I have a couple of studio lights, but पहले when I started out I was only shooting and relying on natural light, so I wanted lots of it. So practically ये वाला पूरा wall and this other wall is properly completely windows, which was a very good decision. I got these sheer white curtains. ये मैंने उस टाइम पर Shein पे खरीदे थे, which I am not very proud of. But ये because ये sheer white है, it really helps to block out अगर कुछ ज़्यादा ही light हो रही होती है sunlight. So to diffuse that, it really helps. And जो curtain का rods है, I got a very like a rustic copper kind of a look to match the faucet in the kitchen. So I wanted a little bit of these metal elements also, which I think works very well together. So this is the photo shoot corner of the room. जो भी चीज़ वहाँ पर बनती है, it comes here so I can take pictures because बहुत बड़े बड़े windows है इसके side पे, so the amount of natural light coming in is fantastic. Fun fact, ये table actually double the size थी. ये पूरी proper dining table size की मैंने पहले बनवाई थी, सिर्फ with this, और इतना ही आगे और था, बट ये मैंने बाद में कट करवा के इसके edges round करवाए because वो बहुत ज़्यादा space occupy कर रहा था. And I feel like for my pictures this much is enough. मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफी के बैकग्राउंड्स है, सो आई कीप देम ऑन दिस टेबल एंड टेक द पिक्चर फ्रॉम देयर. एंड यहाँ पर एक और बैकग्राउंड आ जाता है एंड द लाइट इज हियर. सो दिस इज कॉल्ड द फोटोशूट टेबल. एंड जब से किचन सेटअप हुआ है तब से ऑल द पिक्चर्स दैट यू सी ऑन माई इंस्टाग्राम, इन माई बुक्स, एवरीवेयर, they've all been shot here. So this is a very special part of the kitchen. किचन का ये वाला कॉर्नर आई थिंक लीस्ट प्रिटी एंड मेरा लीस्ट फेवरेट कॉर्नर है बिकॉज मेरे को एक तो ये विंडो का कभी पॉइंट समझ नहीं आया. आई डोंट नो व्हाई ये विंडो यहाँ पर थी. एंड जो इसकी ग्रिल है आई थिंक इट्स हिडियस, बट ये वाली ग्रिल एक्चुअली जब ये घर बना था विच इज़ लाइक इवन बिफोर आई वॉज बॉर्न, ये ग्रिल तब से है यहाँ पर. इवन ये डोर, ये वॉशरूम का डोर है बाय द वे. आई डेंट लाइक द कलर एट ऑल बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डार्क वुड है एंड इफ़ यू वुड नोटिस दैट शेल्स और बाकी जो भी वुड वर्क है लाइट वुड का है सारा, सो ये थोड़ा स्टैंड्स आउट अ लिटिल बिट मोर. यहाँ पर आई हैव केप्ट माई अवन, तो ये ऑलरेडी मेरा डिसाइडेड था कि यहाँ पे अवन जाएगा, विच इज़ वाई यू विल सी दैट काउंटर एक्चुअली कट हुआ है अकॉर्डिंगली सो दैट द अवन कैन फिट हियर रियली वेल. अगेन अनदर फन फैक्ट, इस किचन में हमने माइक्रोवेव का प्रोविजन ही नहीं रखा था. मेरे को हमेशा लगता था कि इस किचन में हमें माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं है. मैं जो मम्मी की किचन है जो एक फ्लोर नीचे है, आई कैन यूज़ द माइक्रोवेव देयर, बट बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था हर चीज़ के लिए. बटर मेल्ट करने के लिए, चॉकलेट मेल्ट करने के लिए एक फ्लोर नीचे फिर ऊपर. तो लेटर यहाँ पर हमने एक वुडन पैनल ऐड करके एक छोटू सा माइक्रोवेव यहाँ पर फिट किया है. तो ऑनेस्टली मेड माई लाइफ 10 times ईजियर. दिस इज द वॉशिंग एरिया ऑफ द किचन, जो कि हमेशा काफ़ी गंदा होता है. आज वीडियो के लिए क्लीन किया गया है. आई रिमेंबर ये पहले जो ये वॉल थी ये ग्रे थी और इसमें बहुत सारा टेक्सचर था, बट अभी रिसेंटली अप्रैल में आई गॉट दिस रीपेंटेड एंड आई गॉट अ प्लेन वाइट वॉल बिकॉज आई थिंक उसकी वजह से स्टूडियो इज लुकिंग मोर स्पेशियस विच आई लाइक एंड ज़्यादा ब्राइट लग रहा है. Two elements which are my favorite in the kitchen are these farmhouse sink and this golden faucet. दोनों मुझे पता था कि मुझे exactly क्या चाहिए, बट ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम लगा था. बट फाइनली मुझे अभी भी नहीं पता how, but my mom made it happen.
and I'm so glad ये kitchen में है. Another element which I really like is this wooden panel. ये मेरे कारपेंटर ने बनाया था. Like a lot of other things in the kitchen, मैंने बहुत सारे woodwork from scratch करवाया है. Shout out to गुलाम भैया. And इसके जो knobs है, I feel like थोड़े से और पतले हो सकते थे. But I like how इससे I can hang kitchen towels, oven mitts, this never stop dreaming coat, and a lot of other things. यहाँ पर I've kept a lot of spatulas and whisks. बहुत सारे हैं, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने रखे हुए हैं. There is a marble counter on both the sides of the sink, and नीचे there is a lot of storage. इस वाले ड्रॉर में सारे केक पैन्स that I've collected over the years सब भरे हुए हैं, and the other one में there is a lot of fabrics and kitchen cloths. And इसके ऊपर if I pull it out, you will see यहाँ पर सारी बड़ी वाली plates हैं. I've been wanting to do this kitchen tour for so many years now, and I'm so glad that I finally recorded this. Let me know in the comments which part of the kitchen did you like the most, and if you enjoyed watching this video, make sure you subscribe to my channel and hit the like button. I'll see you guys next week with another video.